Hello students, today we are going to discuss the chapter 4th planning part 2, and in the part 2 we will understand the planning process, which is our topic. In the previous part I have already told you, I have already explained you that what is planning. Planning is a bridge where we are standing in the present time and where we have to reach. कहाँ पर हम खड़े हैं और कहाँ हमें पहुँचना है. Along with that, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किन के द्वारा करना है. This is called planning, where planning defines as setting the objectives for a time period and formulating the course of action, then selecting the best one in that and implement that plan. So this is called planning. But in every business organization, every manager has to follow the planning process, in which manager follows some steps for making the decision. Means हर ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो सभी मैनेजर्स के द्वारा हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं. There are 7 steps which are as follows in the planning process given here. The first one is setting up objectives. The second one is developing premises. The third one is identifying alternative courses of action. The fourth one is evaluating alternative courses of action. The fifth one is selecting the best course of action. The sixth one is implementation of plan, and the last one is follow up. So first we will understand the first step of the planning process, that is setting up objectives. The subtopic is defining itself already. Means कोई भी organization, every organization must establish the goals or objective, because this is the first step. क्योंकि यही नहीं पता है कि करना क्या है, टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है, तो काम कैसे आगे होंगे, आगे के जितने भी फंक्शंस हैं तो वो कैसे होंगे, वो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स कि में गोल को सेट करना, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ईच डिवीजन के लिए, एवरी डिपार्टमेंट के लिए और एवरी वर्कर के लिए. मींस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक के लिए ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया जाता है, हर एक के लिए ऑब्जेक्टिव प्लान सेट किए जाते हैं. ठीक है, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो डिवीजन्स हो और चाहे होल ऑर्गेनाइजेशन हो. लेकिन वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं. तो कहने का अर्थ क्या है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स व्हिच मे बी ऑफ द ड्यूरेशन पीरियड, long term or the short term. Along with that, they are created for each division, each department, for whole organization
and for every worker in the organization who is working in the organization. So this is the first step in the planning process which is followed by every manager. Now the second step is developing premises. यहाँ पर पहले आपको समझना पड़ेगा प्रीमिसेस का मीन्स क्या है। प्रीमिसेस के अंदर वो सारी पॉलिसीज, वो क्योंकि प्लानिंग कैसी है, प्लानिंग का नेचर है फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक वो तभी है क्योंकि जितनी भी प्लानिंग की जाती है वो कहीं ना कहीं पास्ट में जितने भी एग्जिस्टिंग प्लान थे, ठीक है, पॉलिसीज थी, स्ट्रेटजीज थी, उन पर बेस्ड होकर ही क्या करा जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपिंग प्रेमिसेस का मीन्स क्या है, द assumptions which involves existing plans, existing policies or strategies on which the managers formulates the objectives, formulates the plans, policies for the future. तो कोई भी मैनेजर हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जब प्लान या जब ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग पर बेस्ड होते हैं। और वो फोरकास्टिंग किस पर बेस्ड होती है, वो फोरकास्टिंग बेस्ड होती है कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग प्लान जो पास्ट में यूज किए गए थे, या फिर जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटेजीज जो फॉलो की गई थी, ठीक है, उन पर ही कहीं ना कहीं बेस्ड होती है। तो जो एजम्पशंस जो जिसके कारण स्टार्टिंग, जिसे हम कह सकते हैं एजम्पशन, जो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बेसिक मटेरियल होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द प्लान नोन एज प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस यहाँ पर क्या चीज है कि प्रीमिसेस वो बेसिक मटेरियल है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं प्लान फॉर फ्यूचर। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर the making the objectives, after setting up the developing the premises, the third step which a manager follows, that is identifying alternative courses of action, ठीक है। आइडेंटिफाइंग का मीन्स पहचानना, क्योंकि आप कभी भी जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गोल्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस का मीन्स ये हुआ कि बहुत सारे ऑप्शंस का होगा, ठीक है। तो जितने भी सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं, उन सारे ऑप्शंस को वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि जो उनको जो भी गोल्स को मैच करते हुए, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उन सबको मैच करते हुए जितने भी उनके सामने, ठीक है, अल्टरनेटिव होते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अ मैनेजर। देन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। Selecting the best course of action means, the fourth point, evaluating alternative courses of action. After identifying the alternative courses of action, the manager of the organization evaluates all the alternatives which they have identified already, means जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, ठीक है, उन सब में से ही जो जितने भी अल्टरनेटिव उनके पास थे, उन सबको इवैल्यूएट किया जाता है, फिजिबिलिटी के बेसिस पे कंपैरिजन किया जाता है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स पे, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पे, कि कौन सा प्लान कितना अच्छा है, उसके सक्सेस रेट कितने हैं, किस प्लान के सक्सेस रेट कम है, किसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा है, किसकी फिजिबिलिटी कम है, ठीक है। उन बेसिस पर क्या किया जाता है, अल्टरनेटिव जितने भी होते हैं, ठीक है, एक मैनेजर के पास, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन सबको इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 4 स्टेप्स, द फिफ्थ स्टेप is followed by the manager or the business organization, that is selecting the best course of action.
जब एक बार मैनेजर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद जो अल्टरनेटिव्स उनके सामने होते हैं या उनके पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसमें से बेस्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन यहीं पर आ जाता है कि कंपैरिजन का मीन्स फिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, फिजिबिलिटी के बेसिस पे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स के बेसिस पे, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बेसिस पे, किसकी सक्सेस रेट अच्छी है, किसकी सक्सेस रेट खराब है, ठीक है, किसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, किससे वर्कफोर्स हमारा कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इवेलुएट करने के बाद उसमें से बेस्ट जो है, ठीक है, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं एक आपका मैनेजर की जो मैनेजर है उसकी भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन अगर है, फाइनल इंट्यूशन अगर वो नहीं रखता है, मैच करता है दूसरों से, तो वो अपनी फाइनल इंट्यूशंस के बेसिस पर भी जा सकता है। लेकिन कंपैरिजन कोई लॉजिक नहीं है, कंपैरिजन एक तरीके का टेक्निक है, ठीक है, कि दो चीज़ों में आप कंपैरिजन करें और दो चीज़ों में जो चीज़ आपको समझ में आती है कि ठीक है, अच्छी है, तो आप उस चीज़ पर चले जाते हो। लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है और ये कोई सक्सेस रेट की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, मैनेजर्स अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर भी प्लान्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंट्यूशन के बेसिस पे प्लान्स को तुम्हारा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो the sixth point, this is the fifth point which I have explained you. The sixth point, implementation of plan. एक बार जब प्लान को सेट कर लिया जाता है, ठीक है, प्लान को या फिर बेस्ट जो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, उनको एक बार सिलेक्ट करने के बाद या फाइनल जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ठीक है। कि जैसे एक बार मान लीजिए कि आपको करना क्या है ये आपको पता लग गया, ठीक है, अब वो प्लान, वो ऑब्जेक्टिव, जब आपने एक बार ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने के बाद वो अचीव कैसे होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग को किस में कन्वर्ट करते हो, एक्शन में। यू कन्वर्ट योर प्लान इनटू द एक्शन। So same like that, business organization after setting up the objectives, after completing these five steps, they follow the implementation of plan. They convert their plan into the action, ठीक है। वो अपने प्लान को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, whatever the things which are required to achieve the goal, achieve the objectives, those are accumulated। वो सारी की सारी चीजें क्या करी जाती हैं, इकट्ठा करी जाती हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि प्लान या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो अचीव हो सके। द नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो अप। अब फॉलो अप में यहाँ पर क्या चीज है, फॉलो अप में जब एक बार आपने इंप्लीमेंट कर दिया प्लान, एक बार आपने अपने जो प्लान्स हैं उनको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पर फॉलो अप यानी कि कंट्रोल आता है कि whatever the performance which are being given by the workers and machinery or the production unit, the actual performance is matching with the plant performance or not. If there is any deviation, then the reasons are found, and after getting the reason, the सारे के सारे जो करेक्टिव मेजर्स है, जितने भी whatever the corrective measures which can resolve the problem, those are taken by the managers to to resolve the deviation and match the actual performance with the plant performance। यानी जो प्लांट परफॉर्मेंस है उससे मैच कराने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है, वो सारे के सारे करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि डेविएशन को दूर किया जा सके।
तो फॉलोअप में क्या है कि कंट्रोल रखा जाता है ताकि जो हमने प्लानिंग करी है वो एक्चुअल में भी इम्प्लीमेंट हो और एक्चुअल में हमारा जो हमने प्लान किया है टारगेट अपना वो हमारा अचीव हो सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ये 7 स्टेप्स हैं प्लानिंग प्रोसेस के। ठीक है, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।